کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 15 آگے بڑھتا جا رہا ہے، روز مقابلے اور اس کے اندر زبردست سوال و جواب اور علم دین کے خزانے۔ الحمدللہ آج چھٹا ایپیسوڈ ہے، چھٹی قسط ہے، گویا چھٹی ٹیم ایسی ہوگی جو آگے کے لیے کوالیفائی کر جائے گی۔ آج امید ہے کہ بڑا زبردست مقابلہ ہوگا، کیونکہ آج ہمارے ساتھ دو شہروں کی ٹیمیں ہیں۔ پنجاب کے شہر بھلوال سے بہت دور سے ٹریول کر کے آج ہمارے پاس آئے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ میزبان شہر یعنی کراچی کی ٹیم ہے۔ آج مقابلہ ہے بھلوال اور کراچی والوں کے درمیان۔ دیکھنا یہ ہے یہ طلبہ کیسی تیاری کر کے آئے ہیں، سوال و جواب ہوں گے اور ہمیں بھی گھر بیٹھے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور بڑی تعداد میں یہاں بھی عاشقان رسول موجود ہیں۔ مقابلے کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ گزارش ہے میری دونوں ٹیموں سے کہ آئیے اور اپنی جگہ آ کر تشریف رکھیے۔ جی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے۔ میری دائیں طرف بھلوال کے اسلامی بھائی ہیں، میری بائیں طرف کراچی کی ٹیم ہے۔ دونوں ٹیموں سے تعارف بھی حاصل کرنا ہے اور پھر انشاءاللہ سلسلے کو لے کر آگے بھی چلنا ہے۔ مگر کل جو سلسلہ ہوا، شاندار سلسلہ ہوا، آخری سیگمنٹ میں جا کر بڑے انوکھے انداز میں سلسلے کا فیصلہ ہوا۔ آئیے دکھاتے ہیں ذہنی آزمائش سیزن 15 کا 5واں مقابلہ کس ٹیم نے جیتا، مگر کیسے جیتا۔ مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 15 ایک بار پھر براہ راست آپ کے ساتھ 3 دن کی غیر حاضری کے بعد شامل ہے۔ بندہ اچھے اخلاق کے سبب کس درجے کو پا لیتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ حسن اخلاق کی وجہ سے سخت گرمیوں میں روزہ رکھنے والے اور تہجد گزار کے درجے کو پا لیتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اتنا عجب بلند یہ جنت پہ کس لیے؟ دیکھا نہیں کہ بھیک کس اونچے گھر کی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ یہی ہے ذہنی آزمائش، کبھی ادھر کبھی ادھر اور دل کی سانسیں ادھر ادھر۔ دنیا کی پہلی کشتی حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی۔ غلط۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو صحیحین کہتے ہیں۔ صحیح۔ پاکستان کا قومی مشروب گنے کا رس ہے۔ صحیح۔ پاکستان کا قومی پھل کنو ہے۔ جلدی کیجئے۔ امام زین العابدین کربلا میں شہید نہیں ہوئے تھے۔ جلدی کریں۔ صحیح۔ جناب بتائیے کتنے صحیح جواب دیے ہیں؟ 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں۔ انبلیویبل۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب 4 صحیح جواب دیے ڈیرہ اللہ یار والوں نے تو مقابلہ ہوگا برابر۔ 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے تو ڈیرہ اللہ یار والے نکل جائیں گے آگے، اور اگر 2 غلطیاں کر گئے تو پھر ڈیرہ اللہ یار والے باہر ہو سکتے ہیں۔ خلفائے راشدین میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم کو شیخین کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ سورہ مریم کی پہلی آیت میں 5 حروف مقطعات ہیں۔ صحیح۔ آیت کا لغوی معنی نشانی ہے۔ صحیح۔ قرآن پاک میں 10 منزلیں ہیں۔ غلط۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیات میں واقع معراج کا ذکر ہے۔ صحیح۔ سبحان اللہ، 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں۔ اذکر اللہ۔ انبلیویبل۔ میں سمجھا کہ آج مقابلہ نکل گیا ڈیرہ اللہ یار والوں سے، مگر انہوں نے کمال کیا۔ شاید اب تک کا سفر مگر اکیلے میں سب سے شاندار سیگمنٹ ہوا، اور ڈیرہ اللہ یار والے آگے بڑھ گئے اور 1 نمبر سے صرف آگے بڑھے۔ سچی بات یہ ہے دونوں ٹیمیں شاندار ہیں۔ نواب شاہ والوں کو دل چھوٹا نہیں کرنا، پھر موقع ملے گا، اس میں آپ اچھی تیاری کر کے آئیے گا۔
जनाब बिल्कुल आखिरी सवाल व जवाब पर 5 के 5 सही जवाब देकर डेरा अल्लाह यार वाले आगे बढ़े और नवाब शाह वाले पीछे रह गए। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। आज देखना है कराची या भलवाल। नाजरीन आपको बताते हैं आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। ज़हनी आज़माइश देखो फिर से इल्म नूर है इश्क के बोल, फिर जगमगा इल्म नूर है इश्क के बोल, आखिर दुरुस्त क्या है, गुलदस्ता हदीस, कुरान पाक में मज़कूर हैवानात, सफ़र है मगर अकेले। मगर अभी हमने तारुफ हासिल करना है। दाईं तरफ भलवाल के इस्लामी भाई अपना नाम बताएंगे, अपने काम भी बताएंगे और साथ साथ फिर हम देखेंगे कि भलवाल की सिलेक्शन हुई तो कैसे हुई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम बिलाल उमर अत्तारी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना अली टाउन सरगोदा में 6 ईयर का स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और जामिअतुल मदीना में पढ़ते हैं। जी अगले इस्लामी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद आतिफ तारिब बिन सैफुल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जामिअतुल मदीना के 2nd ईयर में पढ़ता हूँ और मेरी सिलेक्शन भलवाल में हुई। जी माशाल्लाह। तीसरे इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद नोमान अत्तारी बिन मोहम्मद रियाज। मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना बलवाल में दर्जा खामिसा का तालिब इल्म हूँ। माशाल्लाह। तीनों इस्लामी भाई हमारे दरमियान हैं। नाजरीन आइए देखते हैं भलवाल में होने वाले ऑडिशन के कुछ मनाज़िर। मदनी चैनल के नाजरीन मौजूद हैं इस वक्त सरगोदा के शहर तहसील भलवाल के अंदर। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। हराम लुकमे की नहूसत क्या है? हराम लुकमा जब आदमी के पेट के अंदर जाता है तो उस पर ज़मीन व आसमान के तमाम फरिश्ते लानत करते हैं जब तक वो लुकमा उसके पेट में रहता है, और अगर इसी हालत में मर गया तो उसके लिए जहन्नम उसका ठिकाना होगा। खा के गश में गिर जाता फिर तड़प के मर जाता। काश गुंबदे खजरा पर निगाह पड़ते ही खा के गश में गिर जाता फिर तड़प के मर जाता। काश पाँव के बदले सर के बल अगर जाता। बेधड़क मदीने में दाखिला हुआ तेरा, काश पाँव के बदले सर के बल अगर जाता। जी जनाब आपने देखा कि माशाल्लाह भलवाल की टीम कैसे सेलेक्ट हुई। कराची मदनी के इस्लामी भाइयों से तारुफ लेते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन कादरी है और मेरे वालिद साहब का नाम मुनव्वर अली है। जामिअतुल मदीना फैज़ान ज़िया मदीना ब्रिक कॉलोनी नंबर 4 में दर्जा सादिसा 6th ईयर का तालिब इल्म। माशाल्लाह। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नौमान अली अत्तारी बिन कुर्बान अली अत्तारी है और मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना कराची में 7th ईयर का स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ मकानी है और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद अनवर मकानी है। मैं बाय प्रोफेशन एक बैंकर हूँ और इसके साथ दावा इस्लामी प्रोफेशनल फोरम का एग्जीक्यूटिव मेंबर का कमेटी मेंबर भी हूँ मैं। माशाल्लाह। आपको कैसे एज अ बैंकर आपका जहन बन गया ज़हनी आजमाइश के लिए? मैं ऑलमोस्ट पिछले 15 सीजन जो है सारे देखे मैंने। अच्छा। और जब भी वो देखता था तो एक तमन्ना होती थी कि काश कभी मैं भी इसका पार्ट हूँ। तो 2 साल से ट्राई कर रहा था। लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह इस ईयर मेरा जो है नंबर लग गया और मैं ऑडिशन में सिलेक्शन हो गई। क्या बात है जनाब। क्योंकि ज़हनी आजमाइश और मदनी चैनल और दावत इस्लामी ये किसी एक शोबे की किसी एक तबके की नहीं, ये तमाम आशिकान रसूल के लिए है। तो माशाल्लाह मुख्तलिफ़ तबकात से, मुख्तलिफ़ बिज़नेस से, मुख्तलिफ़ जॉब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते हैं और हमारे साथ ज़हनी आजमाइश का ऑडिशन देते हैं। तो हमारे आसिफ भाई जो है वो सेलेक्ट हुए। आइए देखते हैं कराची के ऑडिशन के कुछ मनाज़िर। पहले मरहले का वक्त मुकम्मल हो चुका। फ़र्ज़ किफ़ाया किसे कहते हैं? फ़र्ज़ किफ़ाया वो है कि अगर कोई भी एक मुसलमान अदा कर ले तो बाकी सब बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। नमाज जनाजा गायबाना हो सकती है? नहीं, उसके लिए मैयत का मौजूद होना ज़रूरी है और बेहतर ये है कि इमाम मैयत के सीने के पास खड़ा रहे। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो।
जनाब कराची के इस्लाम भाई सेलेक्ट हो चुके हैं। अब बारी है मुकाबले की। सिलेक्शन और ऑडिशन और चीज़ है, लाइव सिलसिला और चीज़ है। यहाँ तैयारी और तरह की रिक्वायर्ड है और वक्त के अंदर जवाब भी ज़रूरी है। बाज़ औक़ात सवाल का जवाब आता है मगर सामने कैमरा हो तो बंदा भूल जाता है। आज देखना यह है कि कैसी तैयारी है और कौन सी टीम आगे जाती है। शुरू करते हैं पहला राउंड जिसका नाम है इल्म नूर है। जनाब पहला सवाल करेंगे भलवाल वालों से। ये बताइए जो औलाद अपने वालिदैन को जिंदगी में राजी ना कर सके वो उनकी वफात के बाद कौन सा ऐसा अमल करे जिससे उसके वालिदैन उससे राजी हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके वालिदैन हालत नाराज़ी में फ़ौत हो गए, जो उन्हें नाफरमानी करता था, तो अब इसको चाहे कि उनके लिए दुआ इस्तिग़फ़ार करता रहे, क्योंकि फ़ौत शुदगान के लिए इस्तिग़फ़ार से बड़ा कोई तोहफ़ा नहीं। हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके वालिदैन दोनों कोई एक फ़ौत हो गया हो, ये उनकी नाफरमानी करता था, तो अब इसको चाहे कि हमेशा उनके लिए इस्तिग़फ़ार करता रहे, यहाँ तक कि अल्लाह पाक इसको नेकोकार लिख देता है। क्या बात है, कितना खूबसूरत मज़हब है हमारा। वैसे तो ज़िंदगी में भी वालिदैन की खूब खिदमत करनी है, लेकिन अगर वो अपने वालिदैन को ज़िंदगी में राज़ी ना कर सका, उनके दुनिया से जाने के बाद उसे ये ख्याल आया, उसे एहसास हुआ कि मुझसे गलती हुई है, मगर अब कैसे राज़ी कर सके। तो सुभान अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस सुने कि किसी के माँ बाप दोनों या एक का इंतकाल हो गया और ये उनकी नाफरमानी करता था, अब उनके लिए हमेशा इस्तिग़फ़ार करता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह पाक उसको नेकूकार लिख देता है। तो अपने माँ बाप के लिए इसाले सवाब करते रहें, दुआएं करते रहें, उनके लिए सदका जारिया वाले काम करते रहें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल है कराची वालों से, हजरत सैयदना अब्दुल्ला महज रदियल्लाहु तआला अन्हु कौन हैं? वेरी यूनिक पर्सनैलिटी, बड़ा नया नाम है, ये कौन सी शख्सियत है, इनके बारे में हमें बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला महज़ रदियल्लाहु तआला अन्हु, इनकी वालदा का नाम हज़रत फ़ातिमा सुगरा, जो कि हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी हैं, और उनके वालिद का नाम हज़रत इमाम हसन मुसन्ना हैं, जो कि हज़रत इमाम हसन मुजतबा रदियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे हैं। क्या खूबसूरत ये ख़ानदान है कि इमाम हसन के साहबजादे हज़रत हसन मुसन्ना और इमाम हुसैन की साहबजादी सैयदना फ़ातिमा सुगरा रदियल्लाहु तआला अन्हा, इन दोनों का रिश्ता हुआ और इनके बतन से सुभान अल्लाह जो शख्सियत पैदा हुई सैयदना अब्दुल्ला महज रदियल्लाहु तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है। यानी सुभान अल्लाह, ज़रा गौर करें कि इनके दादा जान इमाम हसन हैं और इनके नाना जान इमाम हुसैन हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। जनाब सवाल करेंगे हम अब हमारे भलवाल वालों से। इसी शख्सियत के बारे में सवाल कर लेते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला महज को महज क्यों कहा जाता है रदियल्लाहु तआला अन्हु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला महद रदियल्लाहु तआला अन्हु दुनिया में वो पहले शख्स हैं जिनके माँ बाप हज़रत सैयदतुना फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु तआला अन्हा के खान औलाद से हैं। आपके वालिद मोहतरम हज़रत सैयदतुना फ़ातिमा रदियल्लाहु तआला अन्हा के पोते और आपकी वालदा मोहतरमा हज़रत सैयदतुना फ़ातिमा रदियल्लाहु तआला अन्हा की पोती हैं। क्या बात है। उनके वालिद हज़रत खातून जन्नत बीबी फ़ातिमा के पोते हैं और वालदा बीबी फ़ातिमा रदियल्लाहु तआला अन्हा खातून जन्नत की पोती हैं। क्या ख़ानदान, और मैंने कहा ना ऐसी शख्सियत ये दुनिया में वाहिद है सुभान अल्लाह जिनको ये कमाल और ये निस्बत हासिल हुई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल है हमारे कराची वालों से, अगर कोई शख्स लगातार 3 या 4 जुम्मा की नमाज छोड़ दे तो क्या वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा? लोगों में ये बड़ा मशहूर है, आइए आज इसका जवाब भी ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई लगातार 3 जुमे छोड़ देता है तो ये करना उसके लिए सख्त कबीरा गुनाह है, लेकिन इससे वो दायरा इस्लाम से खारिज नहीं होगा। अगरचे कोई सारी ज़िंदगी भी जुमे नहीं पढ़ेगा तो वो दायरा इस्लाम से खारिज नहीं होगा, अलबत्ता ये सख्त कबीरा गुनाह है।
جمعہ کی نماز چھوڑنا معاذ اللہ سخت کبیرہ گناہ ہے، ایسا کرنے میں جہنم کی حقداری ہے، لیکن اگر کوئی فرض ہونے کے باوجود 3 یا 4 جمعے کی نماز چھوڑ دے یا معاذ اللہ پوری زندگی میں کوئی بھی جمعہ نہ پڑھے تو وہ کافر نہیں ہوگا. ایسے کسی کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کافر ہو گیا. تو جناب یہ اس کا شرعی مسئلہ ہے، مگر یاد رہے کہ جمعہ بہت تاکیدی فرض ہے، لازمی پڑھنا ہے، اور سبحان اللہ یہ تو برکت والا دن ہے، تو بالکل جمعہ نہیں چھوڑنا چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. کیا ایک وقت میں ایک مرید کے 2 پیر ہو سکتے ہیں؟ ویری یونیک کوسچن. ایک پیر کے ہزاروں مرید ہو سکتے ہیں، مگر کیا ایک مرید کے 2 پیر ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے آقا حضرت امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی مثال یوں بیان فرمائی ہے کہ جس طرح ایک عورت کے بیک وقت 2 شوہر نہیں ہو سکتے، تو اسی طرح ایک مرید کے بیک وقت 2 پیر بھی نہیں ہو سکتے. ایک مرید کے 2 پیر نہیں ہو سکتے. جواب درست دے دیا ہے. پہلے کے دور میں جنازے میں شرکت کرنے والوں کی حالت کیا ہوا کرتی تھی؟ یہ بڑا سبق آموز سوال ہے ناظرین، اس کا جواب غور سے سنیے گا. پہلے کے دور میں ہم بھی جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، مگر پچھلے زمانے میں جب لوگ جنازے میں شرکت کرتے تھے ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے کے دور میں جنازے میں شرکت کرنے والوں کی یہ حالت ہوتی تھی کہ ہر کوئی اپنے منہ پر کپڑا ڈالے رو رہا ہوتا تھا، اور اگر کوئی اجنبی تعزیت کرنا چاہتا تو اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کس سے تعزیت کرے. اللہ اکبر. اور یہ روتے اس لیے تھے، ان کو ایسا نہیں کہ سب کو ہی میت سے بڑا پیار ہوتا تھا، سب کو اپنی موت یاد آتی تھی، اپنی آخرت کی فکر ہوتی تھی، ہر کوئی رو رہا ہوتا تھا. آج ہمیں کہیں کبھی میت میں جائیں، جنازے میں جائیں، ڈھونڈنا ہو کہ میت کا رشتہ دار کون ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کوئی ایک ہوتا ہے جس کا چہرہ رونے والا ہوتا ہے، یا سب اس سے مل رہے ہوتے تو بندہ اس سے مل لیتا ہے. لیکن اس وقت ایسا حال ہوتا تھا کہ ہر کوئی آنسو بہا رہا ہوتا تھا، سب کو اپنی یاد آتی تھی. مگر آج حال کیا ہے؟ آج جنازوں میں لوگ کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں، آج تدفین ہو رہی ہوتی ہے اور موبائل فون پر اونچی اونچی آواز میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ آج اس کو دفنایا جا رہا ہے، کل ہماری باری آنے والی ہے. اللہ اکبر. یہ پریکٹیکل مسلمانوں سے اس لیے کروایا جا رہا ہے کہ کفن دیتے وقت خیال رہے، جنازہ پڑھتے وقت خیال رہے، تدفین کرتے وقت خیال رہے کہ جو ہو رہا ہے تمہارے ساتھ ہونا ہے. اللہ کرے ہمیں بھی اپنی آخرت کی فکر ہو جائے. جواب درست دے دیا ہے. سوالات تو چل رہے ہیں، کیوں نہ کچھ وظائف پوچھ لیے جائیں. قیمتی سامان کی حفاظت کا روحانی علاج بتائیں. جناب بہت سارے لوگ اپنے موبائل، اپنی گاڑی، اپنی موٹر سائیکل اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں تشویش میں رہتے ہیں. آج وظیفہ لے جاؤ بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا جلیلو یعنی اے بزرگی والے 10 بار پڑھ کر اپنے مال و اسباب اور رقم وغیرہ پر دم کر دیجئے تو انشاءاللہ وہ مال اور رقم چوری سے محفوظ رہے گی. سبحان اللہ. یا جلیلو اس کے معنی ہے اے بزرگی والے، 10 بار پڑھ کر اپنے مال و اسباب اور رقم پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل چوری سے محفوظ رہے گا. ابھی بھی چاہیں تو ذرا اپنی قیمتی چیزوں پر 10 بار یا جلیلو اول آخر درود شریف پڑھ لیں تو نور علی نور ہو جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. گھر میں بیماری، غربت اور ناداری آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ چلیں جناب یہ بھی وظیفہ لے لیں. بہت سارے لوگ غربت کا، تنگی کا شکوہ کرتے ہیں، آج یہ وظیفہ بھی لے جائیں. تاجر اسلامی بھائی بھی آئے ہوئے ہمارے ساتھ، یہ بھی کاروبار میں برکت کی اور وظیفہ پوچھ رہے ہوتے ہیں. جناب سنیے وظیفہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر گھر میں غربت اور ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک یہ 4 اوراد پڑھنے چاہیے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 112 مرتبہ. تو انشاءاللہ عز و جل اس کے پڑھنے سے گھر سے غربت اور ناداری ختم ہو جائے گی. ذرا وظیفہ دوبارہ بتائیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم اور یا رزاق 112 مرتبہ. اچھا میرے پاس یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھنے جو لکھا ہوا ہے. خیر ان میں سے 4 میں سے آپ نے 3 تو بتا دیے ہیں، تو چلیں آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں. لیکن وظیفہ سن لیں. یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کرنی ہے 7 دن تک بلا ناغہ ہر نماز کے بعد. تو انشاءاللہ بیماری، تنگ دستی، ناداری اس سے نجات حاصل ہوگی. اللہ ہم سب کی بیماریاں اور تنگ دستیاں دور فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. جناب اب وہ سوال ہونا ہے جس کا جواب شاید انہیں پتہ نہ ہو کیونکہ یہ ان کے سلیبس سے ہٹ کر ہے، مگر انہیں اس میں آپشن دیا جائے گا. سوال ہے بھلوال والوں سے، کون سے نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے؟
ऑप्शन 3 है हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम के भतीजे कौन से नबी थे? हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम या हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। 3 ऑप्शंस हैं जी। हज़रत सैयदना लूत अला नबीना वालिस्सलातु हजरत लूत अलैहिस्सलाम, जवाब दुरुस्त दे दिया है जी जनाब। अब बारी है हमारे कराची वालों की। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रदी अल्लाह तआला अन्हा का क्या रिश्ता है? भांजे हैं, भतीजे हैं या नवासे हैं? हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रदी अल्लाह तआला अन्हा से इनका रिश्ता क्या है? भांजे हैं, भतीजे हैं या नवासे हैं? जी नवासे। आपने कहा नवासे। कोई है जो यहाँ बताएं? हजरत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा से हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का रिश्ता क्या था? जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरमा रज़ा तारी तहसील दादू से तशरीफ फरमा हूँ। जी जी। उनका रिश्ता उनके साथ भांजे का था। अच्छा चले, उसैद भाई ने भी हाथ उठाया, वो क्या बताते हैं जी? भांजे। जनाब अब इन्होंने भी कह दिया भांजे, तो दुरुस्त ही कहा है, आपने भी दुरुस्त कहा है, दोनों का जवाब दुरुस्त हो गया है। तो दोनों को तोहफा पेश करें। और हमारे कराची वालों से गलती हो गई है, चूंकि ये सिलेबस से हट के सवाल था तो इसमें जरा थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। बहरहाल मुकाबले में अभी बहुत चीजें बाकी हैं। तोहफा दीजिए भाई इंशाल्लाह, और सवाल भी कीजिए हमारे यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से। जी इंशाअल्लाह देखते हैं कौन जवाब देगा। वो कौन सी सूरत है जिसकी हर आयत के आखिर में हर्फ दाल आया? वो कौन सी सूरत है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह इखलास। सूरह इखलास। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। और इनको बगदादी तस्बीह तोहफे में पेश की जा रही है। ये तस्बीह जो है ये नॉर्मल तस्बीह नहीं है, बगदाद से आई, बहुत बड़ी बात है, मगर ये गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की मुबारक जालियों से टच हुई हुई तस्बीह है। सुभान अल्लाह। सुभान अच्छा अल्लाह। जी चलें, एक और सवाल। गारे हिरा किस शहर में वाक़ है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसन रज़ा लांडी से जी। मक्के में शरीफ में। मक्के शरीफ। मक्के शरीफ में है। इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है और इनको भी इंशाअल्लाह ज़वजल बगदादी तस्बीह तोहफे में दी जाएगी। अच्छा, एक और सवाल। ये ताजरान भी आए हैं, इनसे भी एक सवाल करें। ये गारे हिरा की बात हुई है, गारे हिरा जिस पहाड़ पर है उस पहाड़ को क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद आसिम अली लांडी 6 नंबर मार्केट। जी जी। जबले नूर। उसे जबले नूर कहा जाता है। अब बड़ी मैं आपको खूबसूरत बात बताऊं, जिस गारे हिरा में नबी पाक ने कुछ दिन और कुछ रातें गुजारी हैं, उस पहाड़ को जबले नूर कहा जाता है। और सब लोग कहते हैं वहां पर, मशहूर है वहां पर, ठीक है ना। जबले नूर जाना है तो वो ले जाएंगे आपको। तो मेरे आका फिर कैसे नूर होंगे? है फिर नबी पाक के नूर होने में क्या शक है? सुभान अल्लाह। तो जहां नबी पाक के कदम लग जाएं वो पहाड़ नूर हो जाए। तो सुभान अल्लाह, जिस मदीने में मेरे आका जलवा फरमा हो, जिस रोज़े में नबी पाक जलवा फरमा हो, उस रोज़े के नूरानी होने का क्या आलम होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात हुई है तो हम जो इनको किताब तोहफे में दे रहे हैं उसका नाम है आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सीरत। 156 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब है, नई किताब है। आप भी इसको जरूर पढ़े और ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस किताब के बारे में मैं एक और खूबसूरत बात बताऊं कि इस किताब को सदारती अवार्ड दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। और इस किताब को सीरत की किताबों में बड़ा मकाम हासिल है। बहुत शानदार शॉर्ट एंड स्वीट बुक है, हर घर में होनी चाहिए और बच्चों को, अपनी फैमिली को इस किताब को ज़रूर पढ़ाना चाहिए माशाअल्लाह। जी चलिए नाज़रीन, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 8 नंबर कराची वालों के हैं, 10 नंबर भलवाल वालों के हैं। अगला सेगमेंट है जिसका नाम है इश्क के बोल। कुछ सोना दे इश्क
دونوں ٹیموں سے سوالات ہونے ہیں. پہلا سوال کریں گے بھلوال والوں سے. اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی، اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا ہوں. کیا خوبصورت بات کی ہے مولانا حسن رضا خان صاحب نے. اور میں کس بات کا شکوہ کروں، بس سب سے بڑا دکھ یہی ہے، محرومی یہی ہے، رنج یہی ہے کہ مدینے کا سفر نہیں ہے. اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی، اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا. اے حسن قصد مدینہ کراچی والوں کی باری ہے. موت اس دن کو جو پھر نام وطن کا لیتا. موت اس دن کو جو پھر نام وطن کا لیتا. مشورہ کیجئے، سیکنڈز جا رہے ہیں. موت اس دن کو جو نام وطن کا لیتا، خاک اس سر پر جو ہائے خدایا کرتا. خاک اس سر پہ جو اس در سے کنارہ کرتا. غلطی ہو گئی ہے جناب آپ سے. اب بھلوال والوں کی باری ہے. جس نے امت کے لیے رو کے گزاری راتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس نے امت کے لیے رو کے گزاری راتیں، وہی محبوب خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا. وہی محبوب خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا. جواب درست دے دیا ہے. جس نے امت کے لیے رو کے گزاری راتیں، جس نے امت کے لیے رو کے گزاری جس نے کہا تھا انا بشر، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بارہا جس نے کہا تھا انا بشرن، اس نے مرآنی بھی کہا تھا مجھے معلوم نہ تھا. مرآنی بھی کہا تھا مجھے معلوم نہ تھا. جواب درست دے دیا ہے. مخالف کیا کرے میرا کہ ہے بے حد کرم مجھ پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مخالف کیا کرے میرا کہ ہے بے حد کرم مجھ پر، خدا کا رحمت للعالمی کا غوث اعظم کا. خدا کا رحمت للعالمی کا غوث اعظم کا. جواب درست دے دیا ہے. نبی کے نور کو کر دیکھنا چاہے انہیں دیکھے. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے. ذہنی آزمائش دیکھو پھر
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी के नूर को अगर देखना चाहे उन्हें देखे, सरापा नूर अहमद है सरापा गौसे आजम। सरापा नूर अहमद है सरापा गौसे आजम का जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बताइए, हदायत के बख्शिश आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह का जो नातिया दीवान है, उसमें लफ्ज़ रा से शुरू होने वाले कितने कलाम हैं? रा से कितने कलाम शुरू होते हैं? और उनमें से कोई एक शेर भी आपने सुनाना है। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नातिया दीवान हदायत के बख्शिश, उसके अंदर रा से शुरू होने वाले कलामों की तादाद 5 है। अच्छा, कोई शेर भी सुना दें। राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है। हाय हाय जनाब, 5 कलाम आते हैं रा से, और जिस कलाम का शेर उन्होंने सुनाया है, आला हजरत ने उस कलाम में तो गोया झंझोड़ दिया है कि राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार हैं क्या होना है। यानी एक ऐसी राह है जिसमें बड़े कांटे हैं, पैरों में गोया चप्पल भी नहीं है। यानी वो आखिरत के सफ़र की याद दिला रहे हैं। घर भी जाना है मुसाफिर के नहीं हैं, कि घर का याद, आखिरत के घर की याद दिला रहे हैं। मत पे क्या मार है क्या होना है। बहुत कुछ उसमें समझाया है, बड़ा ही नसीहत आमोज कलाम है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब बारी आपकी है। सीन से शुरू होने वाले कलामों की तादाद भी बताएंगे और उनमें से कोई शेर भी सुनाएंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सीन से शुरू होने वाले कलामों की तादाद 9 है, और उसका एक शेर ये है। सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल बदन फूल ज़कन फूल दहन फूल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अब आज जो हमारा 5वां शेर होगा उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा उसको और मुश्किल किया गया है। सिर्फ शेर का एक लफ्ज इन्हें बताया जाएगा। अब इनके पास ऑप्शन होगा कि दूसरी लाइन का अगर एक लफ्ज ये खुलवाना चाहें और फिर शेर को सुनाना होगा। देखते हैं भलवाल वालों के लिए पहला शेर कौन सा है। जी, सिर्फ लफ्ज तेरे आया है। अब आपके पास ऑप्शन है कि अगले शेर का पहला लफ्ज, दरमियान का लफ्ज या आखिरी का लफ्ज खुलवा लें। तो आपको फिर उसके बाद आपको बताना होगा कि शेर कौन सा है। इस बार नंबर नहीं कटेंगे। अगर आप एक और इशारा लेंगे तो फिर आपका 2 में से 1 नंबर हो सकता है। तेरे, बहुत सारे शेर है तेरे से। तो जो इसका आखिरी जो आखिरी लफ्ज, दूसरी लाइन का आखिरी दूसरे लफ्ज़। मिसरे का आखिरी वर्ड, दूसरी लाइन का आखिरी वर्ड दिखा दें भाई जनाब। या रसूल अल्लाह। अब अगर आप चाहते हैं तो जवाब दे दें, वरना एक और इशारा दरमियान का या पहला लफ्ज भी खुलवा लें ताकि कम से कम 1 नंबर जरूर मिले। गलत जवाब देने पर कोई नंबर नहीं मिलेगा। रिस्क ना लीजिएगा, अगर ना समझ आ रहा हो तो एक ऑप्शन और ले लें। 5 सेकंड रह गए। तेरे के बाद जो लफ्ज़ है वो भी। तेरे के बाद वाला लफ्ज नहीं खुलेगा, दूसरी लाइन का पहला, दरमियान का या आखिरी लफ्ज खुलेगा। जल्दी से बता दे, सेकंड्स मेरे पास खत्म हो गए। आखिरी तो खोल चुके आप। पहली लाइन का आखिरी। पहली लाइन में कुछ भी नहीं खुलेगा। पहला, दूसरी लाइन का पहला लफ्ज खोल दे। जी, खुदाए मशवरा कीजिए, जरूर कीजिए। अब आप अगर जवाब देंगे तो 1 नंबर मिलेगा। जनाब 5 सेकंड बाकी हैं। वक्त आपका खत्म हो गया है, जवाब नहीं दे सके। शेर दिखा दीजिए स्क्रीन पर। वो शेर क्या, कौन सा था? तेरे हुस्नो मलाहत पर दो आलम
क्यों ना हो कुर्बान, खुदाए पाक है जब तेरा खाहां या रसूल अल्लाह। गलती हो गई है भलवाल वालों से, कराची वालों की बारी है, पहला लफ्ज दिखाया जाए जनाब। जहाजे, चाहे तो पूरा सुना दें, चाहे तो एक ऑप्शन तो वैसे ही फ्री है, आप पहला दूसरा या आखिरी वर्ड्स ओपन कर सकते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। आप ऑप्शन लेंगे तब भी नंबर नहीं कटेंगे, एक ऑप्शन फ्री है, कंफर्मेशन के लिए चाहे तो ले लें, चाहे तो सुना दें। पहला इशारा फ्री है, ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है जी। आखिरी ऑप्शन, आखिरी लफ्ज, आखिरी। दूसरे शेर का आखिरी लफ्ज खोल दें भाई। का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाज़े ताजरा गिरदाब से फ़ौरन निकल आया, वजीफ़ा उन्होंने जब पढ़ लिया या गौसे आज़म का। जहाज़े ताजरा गिरदाब से फौरन निकल आया, वजीफा जब उन्होंने पढ़ लिया या गौसे आजम का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कराची ने कुछ नंबर कवर किए हैं मगर अब भी फर्क बाकी है। और अब बारी हमारे यहाँ इस्लामी भाइयों की है जिनसे हमने शेर सुनना है। किस किसने शेर सुनाना है? आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता। चलिए जनाब। रोज एक चांद सितारों में उतारा करता। सितारों में उतार, चांद सितारों में कहाँ उतरता है? करीब पहुंच गए हैं आप। रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा। तसद्दुक कहते, क्या खूबसूरत शेर है कि या रसूल अल्लाह। अच्छा वही वाली बात है, ये तखय्युल आला हजरत और उनके खानदान का तखय्युल है कि तलवे जो होते हैं ना वो जमीन से लगे हुए होते हैं। तो अगर आसमान तलवों का दीदार कर लेता ना, क्योंकि तलवे तो छुपे हुए होते हैं, हुजूर आपके तलवे इतने खूबसूरत हैं कि वो रोज एक चांद आप पर कुर्बान किया करता। तसद्दुक कहते सदके वारी ज्यादा हो, तसद्दुक में चांद रोज आसमान वारी करता कि आपके तलवे अल्लाह ने इतने खूबसूरत बनाए हैं। क्या बात है, ये इश्क की बातें हैं। तोहफा दीजिए जनाब माशाल्लाह जी। इनको तोहफे में नमाज के अहकाम, तो इनसे भी तो कोई तोहफा लेना। हमने इनका आधा शेर मान लिया, कोई 3 दिन मदनी काफिला भी तो मिलना चाहिए ना इनसे। आपके साथ मेरे साथ सफर करना है तो फिर तो और बड़ी फीस देनी पड़ेगी इंशाल्लाह। ये वाला काम ना करें, पहले आप तारीख दें, मेरे साथ सफर के लिए ऐलान फिर हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए जनाब, अब एक और शेर नेक्स्ट मंथ कह रहे हैं। चले नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह जी। अब शेर सुनना है, सैयद आला हजरत का शेर सुना दें इंशाल्लाह। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, काश ये शेर में जो दुआ है, जो इल्तिजा है, वो कबूल भी हो जाए। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का जी। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि मोहम्मद अरसलान अत्तरी और टाउन से हाजिर हुआ हूँ। माशाल्लाह। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कांटा मेरे इसी कलाम का बहुत ही खूबसूरत शेर मक्ता इस कलाम का, और आला हज़रत ने कमाल किया है। एक दिन ऐसा होगा कि जहाँ पर बेटे पर गुजरेगी ना तो बाप को भी खबर नहीं होगी, बाप भी वहाँ साथ नहीं देगा। उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहाँ। कौन सा दिन है? उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहाँ। मैंने दूसरा जवाब भी तर्जमे में दे दिया है, जिसको याद आ जाए जवाब दे दें। चलें जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहाँ, गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर ना हो। गुजरा करे पिसर पे, फारसी का लफ्ज है पिसर, बेटा, पिदर वालिद, यानी बेटे पर गुजरेगी, बाप को खबर नहीं होगा, बस आका होंगे जो वहां बचाने वाले होंगे। उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां, गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर ना हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उनके सिवा
माशाल्लाह। चले जनाब नाजरीन कुछ कॉल भी शामिल करते हैं, फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं जी। मेरा नाम शाहजमान अख्तारी है, मैं शाहपुर जानिया से अर्ज कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब साहब, आप अपनी आवाज में ये शेर सुना दीजिएगा। मेरा दिल ये कहता हौसला रख, आका दा बुलावा आवेगा। मेरा दिल ये कहता हौसला रख, आका दा बुलावा आवेगा। पर की करिए पे सबरीदा, पर की करिए बे सबरीदा। मेरे दिल विच जांदा चोर नहीं। माशाल्लाह। खैरा। मुझसे अच्छा तो वैसे ही आपने पढ़ दिया है और बड़ा प्यारा पढ़ा है। अल्लाह आपको नबी पाक के दर की हाजिरी अपने घर वालों के साथ अता फरमाए। दिलजोई की नीयत से शेर पढ़ देता हूँ। मेरा दिल ये कहता है हौसला रख, आका दा बुलावा आवेगा। मेरा इश्क ये कहता है हौसला रख, आका दी ज़ियारत होवेगी। पर की करिए बेसब्रीदा, पर की करिए बेसब्रीदा। मेरे दिल विचों जांदा चोर नहीं। सब मिलकर कहेंगे मैनू शौक मदीने जावण दा। मेरे दिल विच हसरत हो नहीं, आका तेरी मर्जी है साडा ते कोई जोर नहीं। चलिए जनाब आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। फिर जगमगाया है ज़हनी आज़माइश। माशाल्लाह 16 नंबर कराची वालों के हैं, 18 नंबर भलवाल वालों के हैं। मुकाबला आगे बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ माशाल्लाह एक बहुत ही अहम जिम्मेदार दावत इस्लामी के, आप उनको मदनी चैनल पर सोशल मीडिया पे देखते हैं, इंग्लिश मदनी चैनल पर प्रोग्राम्स भी उनके आते हैं। सैयद फुज़ैल शाह साहब यूके से तशरीफ़ लाए हैं, उनको मरहबा कहते हैं। माशाल्लाह FGRF ओवरसीज़ के हमारे यूरोप और काफ़ी सारे मुल्कों की ज़िम्मेदारी भी इनके पास है। बिलखुसूस मैं चाहूँगा कि फुज़ैल शाह साहब ज़हनी आज़माइश के हवाले से भी कुछ फरमाएं। क्या यूके में भी लोग देखते हैं मदनी चैनल के हवाले से भी, और फिर आप हमें ये भी बताएंगे इंशाल्लाह कि बिलखुसूस FGRF के हवाले से आपका तुर्की भी जाना हुआ और आप अब इंशाल्लाह गज़ा के कामों को भी देख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग पूछते भी रहते हैं कि भाई FGRF गज़ा में क्या कर रही है और आगे प्लान्स क्या हैं, तो कुछ उस बारे में भी बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह अब्दुल भाई, नो डाउट इज़ अमेजिंग सिलसिला। वो कहते हैं ना पूरे साल जिस सिलसिले का इंतज़ार होता है, तो अल्लाह की रहमत से सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर और यूके में भी इसको बाकायदा शौक़ के साथ और एहतमाम के साथ देखा जाता है। बच्चों में बाकायदा कंपटीशन होता है, आपस में टीम वहाँ पर भी होती है। हालांकि यूके में इस वक्त रात नहीं हो रही, हालांकि शाम का वक्त है, लेकिन उसके ज़ाहिर बच्चों का ये पीक टाइम हो जाता होगा। जी जी, उनके क्योंकि स्कूल से फरागत के बाद आने का टाइम है, ठीक है। 3 के बाद, तो ये उनका पीक टाइम होता है बच्चों ठीक का। है, ठीक है। तो माशाल्लाह अल्लाह करीम और बरकत अता फरमाए। FGRF डेफिनेटली हमारा जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। इस वक्त भी जो है वो कई मुल्कों के अंदर एक्टिवली काम कर रहा है। जैसे आपने तुर्की के हवाले से बात की है और आप भी वहाँ पे कई दफ़ा गए हैं, हमारा भी जाना हुआ है। और इस वक्त भी यानी कि इतने महीने गुजर गए हैं, इस वक्त भी वहाँ पर FGRF जो है वहाँ पे खाना भी दे रहा है और इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ साथ जो हमने वहाँ पे घर बनाए हैं उनके लिए कंटेनर होम, जिसको गवर्नमेंट ने भी अप्रिशिएट किया है और बाकायदा गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ ही हमें जगह दी गई है जहाँ पर हमने उनके लिए घर बनाए हैं। जैसे अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान के अंदर जब ज़लज़ला आया तो ऐलान किया था 15,000 हाउसेस, तो अल्लाह की रहमत से अभी तक मोर देन 5,500 हाउसेस बनाकर दिए जा चुके हैं। आप मेरा ख्याल है पिछले दिनों हाउसेस गए भी थे, जगह कहाँ गए थे? ये नवाब शाह के आगे कोई
हाफिज अहमद कोई जगह है शायद, ठीक है। लास्ट टाइम बलूचिस्तान की तरफ गए थे, कोई 3-4 घंटे का रास्ता था, तो अभी यहाँ पर और सकरन के पास गए थे, यहाँ पे भी जाकर हमने घर दिए अल्लाह की रहमत से जो FGRF ने बनाए हैं, और लोगों के दिल से जो दुआ निकल रही है, शायद बस कहते हैं ना यही हमारी बिगड़ी बना देगी। इसमें मैं आपके तवस्सुल से यूके के व्यूअर्स और यूके के आशिकान रसूल का शुक्रिया भी अदा करूंगा कि whenever we need help for the FGRF, alhamdulillah the brothers and sisters from UK donate generously, like in the flood in Pakistan, the earthquake in Turkey and the Syria, and then Morocco and then Libya, और अब माशाल्लाह जो हमारे गजा के मुसलमानों की मदद का सिलसिला शुरू हुआ उसमें भी माशाल्लाह यूके से बहुत अच्छा ताउन हमें मिलता है। तो जज़ाकल्लाह फॉर ऑल ऑफ द व्यूअर्स ऑफ मदनी चैनल फ्रॉम यूके, यूरोप, अब्रॉड, बहुत अच्छा हमारा साथ देते हैं। और माशाल्लाह सैयद साहब खुद उन जगहों पर गए। नेक्स्ट आने वाली थर्सडे इंशाल्लाह मैं खुद भी 7 शरीफ के करीब एक गाँव है, थोड़ा नाम उसका मुझे भी मुश्किल है, बापू बताएंगे, जंगारा भी होकर, हाँ जंगारा में जा रहा हूँ। वहाँ कुछ हम कुछ हाउस की तकसीम, उनकी चाबियों की तकसीम करेंगे और उनको घर हैंड ओवर करने जा रहे हैं, तो वहाँ मैं इंशाल्लाह थर्सडे को जा रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब देखकर बड़ी खुशी होती है कि इतने बड़े दीनी काम के साथ साथ आपकी हमारी दावत इस्लामी FGRF में कितना बड़ा काम कर रही है। एक चीज मैं वजाहत कर दूं, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, इज अ मिसकंसेप्शन हाउ वी आर वर्किंग इन फलस्तीन एंड गजा राइट नाउ एंड it's not possible for everybody to go inside. Yeah, you have to clear it. Alhamdulillah, the first 10 days we the only NGO we can say we not announce that we are collecting the fund for Palestine. Yes. हम वो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने 10 दिन पहले जो है वो अनाउंस नहीं किया था कि जब तक हमें कोई वे नहीं मिलेगा हम चंदा जमा नहीं करेंगे। दिस इज ऑल्सो द यूनिकनेस ऑफ FGRF एंड दावत इस्लामी कि एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू शरिया के कहीं पैसे लेकर अगर हम मदद नहीं कर सके तो क्या होगा। तो ये माशाल्लाह अमीर अहले सुन्नत की तरबियत, हमारे निगरान शूरा अब्दुल हबीब भाई ने बाकायदा इसको ऑन किया कि जब तक हमें परमिशन नहीं मिलेगी, कोई एक्सेस नहीं मिलेगा। आफ्टर 10 डेज के बाद जब लोग कहने लगे जी आप नहीं कर रहे, क्या हो रहा है, अल्लाह की रहमत से 10 दिन के बाद हमें लिंक मिले जो अंदर ही थे, और क्योंकि इस वक्त बाहर से इतनी इमदाद नहीं जा सकती, तो राइट नाउ वी आर वर्किंग इनसाइड। जो हमारे लोकल जो NGOs होती हैं उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन होता है, ये दुनिया भर में होता है, तो उनके ज़रिए एवरी डे हमारी 1000 से ज़्यादा लोगों की फूड डिस्ट्रीब्यूशन है। अल्हम्दुलिल्लाह सो फार मोर देन 40,000 आशिकान रसूल का खाना इस वक्त तक हम वहाँ पे खिला चुके हैं। सुभान अल्लाह, 40,000 जस्ट इन गजा राइट नाउ। गजा के अंदर अब तक 40,000 लोगों का खाना जो है वो तकसीम हो चुका है, रोजाना खाना पक रहा है, वहाँ बट रहा है। और जैसे कि सैयद साहब ने बताया कि जब तक हमें रास्ता नहीं मिला हमने कोई फंड की अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगले चंद दिनों में इंशाल्लाह जैसे ही बॉर्डर खुलेंगे, एक्सेस मिलेगा, हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं सैयद साहब और बहुत सारे हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनके पास वीज़ा का इशू नहीं है, जो इंशाल्लाह वहाँ जा सकते हैं, तो हम टीम्स बिल्कुल तैयार हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारा जो नारा हमने सिंध के अंदर निभा रहे हैं, तुर्किया में भी अभी तक काम हो रहा है कि हम भूले नहीं हैं, इंशाल्लाह हम गजा के मुसलमानों को भी भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह। अपने उन दुखियारे भाइयों की, हमारी बहनें, हमारे बच्चे हैं, वो उनकी मदद करेंगे और इंशाल्लाह आगे तक करते रहेंगे इंशाल्लाह। मोरक्को के अंदर अब्दुल हबीब भाई 38 इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर हैं उन्होंने FGRF को ऑफिशियली अनाउंस किया। दिस इज द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कि मोरक्को के अर्थक्वेक में जिसने सबसे जाके पहले मदद की है, तो वो भी हमारी FGRF इस वक्त भी मोरक्को में काम कर रही है, इस वक्त भी तुर्की में कर रही है, इस वक्त भी सीरिया में कर रही है, इस वक्त भी फ़लस्तीन में गजा में कर रही है, और इस वक्त भी पाकिस्तान में कर रही है, इस वक्त भी मलावी के अंदर कर रही है, जहाँ के साइक्लोन और अर्थक्वेक जो वहाँ पर जो है वो फ्लडिंग सिलसिला रहा है, कीनिया के अंदर भी, तंजानिया के अंदर भी, और सून इंशाल्लाह। आज वैसे आपसे एक मशवरा भी होना था, शायद बहुत सौ को नहीं पता, अभी सोमालिया में लास्ट वीक जो है फ्लडिंग हुई है, अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन इथोपिया भी बड़ा इफेक्ट हुआ है, और उस पर भी हम इंशाल्लाह उसकी भी हमारी अल्लाह की रहमत से FGRF की प्लानिंग इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह दुनिया भर में आशिकान रसूल, दुखियारी उम्मत की मदद करने वाला ये इदारा है दावत इस्लामी का शोबा FGRF, हम सबको उनका साथ देना चाहिए। सही साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से भी बताया, उम्मीद है बहुत सारे लोगों के हौसले भी बड़े होंगे और इंशाल्लाह क्लेरिफाई भी हुआ होगा। नाज़रीन फिर आ जाते हैं ज़हनी आजमाइश में और उसको लेकर आगे चलते हैं, एक बार फिर हमें स्कोर बोर्ड दिखाया जाए। जनाब 16 कराची और 18 भलवाल। अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आखिर दुरुस्त क्या है। जनाब ये सेगमेंट बहुत ही खूबसूरत है जिसमें बुनियादी अकायद सिखाए जाते हैं, और आज तो यूं समझिए कि ऐसा अकीदा जिस पर बात होगी जो बच्चे को बहुत ज़बानी याद होना चाहिए, पुख्ता होना चाहिए। नाम उस अकीदे का ख़त्म नबूवत है। आज ख़त्म नबूवत के हवाले से बात करेंगे। बताइए अकीदा ख़त्म नबूवत का मतलब क्या है? भलवाल वालों से सवाल है।
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام نبیوں کے آخر میں مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم فرما دیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت ملنا کسی کو محال ہے. یہ عقیدہ ضروریات دین سے ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر، گمراہ اور دار اسلام سے خارج ہے. جناب یہ ایسا عقیدہ ہے جس سے ادنا سا بھی شک و شبہ کرنے والا بھی کافر، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. ہمارا عقیدہ ختم نبوت پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے آخر میں مبعوث فرمایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم فرما دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت قائم ہونے تک کسی کو نبوت ملنا محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے. یہ عقیدہ ضروریات دین سے ہے. جواب درست دے دیا ہے. ختم نبوت کا ثبوت قرآن سے، اس کو واضح کیجئے. سوال دوبارہ. جی ختم نبوت کا ثبوت قرآن سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ختم نبوت کا ثبوت قرآن سے قطعی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اور سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے. سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. قرآن پاک میں واضح اعلان ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. جواب درست دے دیا ہے. ختم نبوت کا ثبوت حدیث پاک سے بیان کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، لہذا تم اپنے رب کی عبادت کرو، اپنی 5 نمازیں پڑھو، اپنے مہینے کے روزے رکھو اور اپنے مال کی خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے حکام کی اطاعت کرو اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ. کیا خوبصورت بات میرے آقا نے فرمائی. عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اے لوگو بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، لہذا تم اپنے رب کی عبادت کرو، 5 نمازیں پڑھو، اپنے مہینے کے روزے رکھو، اپنے مالوں کو خوش دلی کے ساتھ اس کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے حکام کی اطاعت کرو اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ. تو انشاءاللہ ان اعمال پر بھی عمل کرنا ہے، عقیدے کو بھی مضبوط رکھنا ہے اور اپنے آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل بھی ہونا ہے انشاءاللہ. ختم نبوت کے منکر کا کیا حکم ہے؟ ختم نبوت کے منکر کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت قرآن و حدیث سے اور اجماع امت سے ثابت ہے اور یہ قطعیت کے ساتھ ثابت ہے. لہٰذا اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو اس کا انکار کرنے والا مرتد، دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہوگا، اور اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو اس کے سارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے، اور اگر شادی شدہ تھا تو اس کا نکاح بھی باطل ہو جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری نبی ہونا قطعی ہے اور یہ قطعیت قرآن و حدیث و اجماع امت سے ثابت ہے. قرآن مجید کی صریح آیت بھی موجود ہے اور احادیث تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں اور امت کا اجماع قطعی بھی ہے. اس سے ثابت کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں. جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بعد کسی اور کی نبوت کو ملنا ممکن جانے وہ ختم نبوت کا منکر، کافر اور اسلام سے خارج ہے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ خوش رکھے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو عقائد کے اوپر جس قدر پختگی الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں ہمیں سکھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے. بلکہ امیر اہل سنت کا ایک اور بڑا خوبصورت انداز ہے کہ بچے کی گٹی میں ایسے عقیدہ اہل سنت کو، عقیدہ بنیادی عقائد کو ڈال دیا جائے. ایسے کئی نعرے آئے جس نے
फरिश्ते बहुत सारे अकायद को क्लेरिफाई कर दिया। जैसे एक बहुत खूबसूरत नारा, हर सहाबी नबी जन्नती, बहुत सारे दरवाजे बंद कर दिए कि किसी सहाबी रसूल के बारे में कभी भी कोई माइनस बात ना सुननी है ना करनी है। अब अकीदा खत्म नबूवत को पूरी दुनिया के हर मुसलमान के दिल में दाखिल करने का एक और खूबसूरत अंदाज, जहां बहुत सारे बयानात, बहुत सारी किताबें, मदनी मुज़ाकरे और सिलसिलों के जरिए बात की जाती है, वहां एक खूबसूरत नारे हमें अता फरमाए। आइए मिलकर वो नारे लगाते हैं जो मुझे मदनी चैनल के नाजरीन भी सुन रहे हैं, वो भी लगाएंगे। मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाह हर दो सरा सबसे आखिरी नबी, ताजदारे अंबिया सबसे आखिरी नबी, हैं हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी, आसियों का आसरा सबसे आखिरी नबी, एतिकाद फातिमा सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, अकीदा गौसे पाक का सबसे आखिरी नबी, औलिया ने भी कहा सबसे आखिरी नबी, नारा है अत्तार का। बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट नाजरीन, इसीलिए मैं पहले प्रोग्राम से कह रहा हूं कि इस सेगमेंट को खुद भी देखें, बच्चों को भी दिखाएं, अपने अकायद को मजबूत करें, ऐसे लोगों को करीब ना आने दें जो हमारी अकायद की मजबूत दीवार में किसी किस्म की पिन दाखिल करें, वसवसों का शिकार करें। ये बुनियाद है हमारे दीन की, मजहब की। हमें पता होना चाहिए कि हमारे असल अकायद क्या है और उसमें ज़रा बराबर भी कमी नहीं आनी चाहिए। अल्लाह हम सब के अकायद को, हमारे ईमानियात को और मजबूत फरमाए और नबी पाक से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। इश्क वालों के साथ, ईमान वालों के साथ, ईमान के साथ ज़िंदगी नसीब फरमाए और ईमान और आफियत के साथ, सही अकायद के साथ मदीना मुनव्वरा में हमें मौत नसीब फरमाए। नाज़रीन आइए चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब मुकाबला आगे बढ़ता जा रहा है। 20 नंबर है कराची मदनी, 22 नंबर है भलवाल वालों के। अब अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है गुलदस्ता-ए हदीस। दौरान सिलसिला हमारे साथ एक और मेहमान तुर्की से आए हुए माशाल्लाह बुजुर्ग शख्सियत मौजूद हैं, दावत इस्लामी के मुबल्लिग हैं और तुर्की ज़बान में और अरबी ज़बान में गुफ्तगू करते हैं। मैं चाहूँगा फुरकान भाई आप हज़रत के पास जाएं और थोड़ी देर बाद मैं इंशाल्लाह आपसे बात करूँगा कि हमारे सिलसिले के हवाले से कुछ अपने तासुरात, और माशाल्लाह काफ़ी अरसे से फैज़ान मदीना आए हुए हैं तो आपने कुछ हमारे अपने जज्बात शेयर करें कि उनको कैसा फ़ील हो रहा है। तो फुरकान भाई साथ होंगे तो फिर तर्जमा भी कर सकेंगे। जनाब अब बारी है भलवाल वालों की और आपसे हमने हदीस भी पूछनी है, तर्जमा भी पूछना है और उसकी तखरीज भी, उसका रेफरेंस भी आपसे मालूम करना है। बताइए पहला सवाल भलवाल वालों के लिए क्या है? इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खब्सिन, शबाबक क़ब्ल हरमिक, व सिहतक क़ब्ल सक़मिक, व ग़िनाअक क़ब्ल फ़क़रिक, व फ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक, व हयातक क़ब्ल मौतिक। अमेजिंग हदीस है नाजरीन, जब भी पढ़ते हैं ईमान ताज़ा हो जाता है। लोग बहुत बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट पर, ज़िंदगी के मामलात को कैसे सॉर्ट डाउन करें। कमाल की हदीस। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि 5 चीज़ों को 5 से पहले गनीमत जानो। अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले, अपनी सेहत को अपनी बीमारी से पहले, और मालदारी को तंगदस्ती से पहले, और अपनी फुर्सत को मशगूलियत से पहले, और अपनी ज़िंदगी को मौत से पहले। मुस्तदरक जिल्द 5 सफ़ा नंबर 435 और हदीस पाक नंबर 7916। मुस्तदरक जनाब जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 435 हदीस नंबर 7916। क्या बात है, 7916 हदीस नंबर भी ठीक बताई है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। इस हदीस की शरह जरा पढ़ सुनिएगा कि समझदार शख्स शाम होने पर सुबह का इंतजार नहीं करता और सुबह होने पर शाम का इंतजार नहीं करता, बल्कि उसे लगता है कहीं ऐसा ना हो उससे पहले ही मुझे मौत आ जाए। इसलिए वो नेक अमाल करता है जो उसे मौत के बाद काम आएंगे। इसी तरह वो सेहतमंदी के ज़माने में गनीमत जानते वो ज़माने को उसमें नेकियां करता है। अल्लाह करे ये हदीस इतनी कमाल की है, जितना गौर करें उतने उसके अंदर मोती हैं कि इन चीज़ों पर हमें गौर करना नसीब हो जाए। जवाब दुरुस्त हो गया है। कराची वालों की बारी है। बताइए कौन सी हदीस है जिसका इन्होंने जवाब देना है। जनाब 3 बातों के सबब अरब से मोहब्बत करो कि मैं अरबी हूं और कुरान अरबी है और जन्नतियों की ज़बान भी अरबी है। अब इसकी अरबी में ही हदीस सुनानी है और उसका रेफरेंस भी बताना है।
بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب العرب لثلاث لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي. سبحان اللہ. مستدرک جلد نمبر 5 حدیث نمبر 7081. 7081 مستدرک کی جلد نمبر 5 ہے. جناب کتنی خوبصورت حدیث ہے. یہ بہت سارے لوگوں کے لیے سبق ہے کہ 3 باتوں کے سبب عرب سے محبت کرو کہ میں عربی ہوں اور قرآن عربی ہے اور جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے. ہمیں عاشقان رسول تمام عربیوں سے پیار ہے. جواب درست دے دیا ہے. حدیث نمبر 7081 ہے اور جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 117. سبحان اللہ. اب باری ہے بھلوال والوں کی. جناب بتائیے وہ کون سی حدیث ہے جس کا ریفرنس دینا ہے؟ جی ریفرنس دیا ہوا ہے. متن اور حدیث بتائیں گے. معجم کبیر کی حدیث حدیث نمبر 611 ہے. عربی حدیث بھی پڑھنی ہے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من صلی 4 رکعات قبل العصر حرم اللہ بدنہ علی النار. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو شخص عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن پر آگ کو حرام فرما دیتا ہے. کیا بات ہے. عصر سے پہلے کی سنتیں کئی لوگ چھوڑ دیتے ہیں. بلکہ ایک اور حدیث پاک 2 حدیثیں اور ہیں کہ ان 4 رکعات کو پڑھنے والے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت کی دعا اور اس کے بدن کے آگ پر حرام ہونے کو بیان فرمایا ہے. نیک اعمال میں جبھی تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ سنت قبلیہ بھی پڑھ لیں. تو نیت کریں انشاءاللہ اپنے وقت سے پہلے مسجد میں پہنچ جایا کریں تاکہ 4 رکعات سنت قبلیہ پڑھنے کا موقع ملے. جو گھر میں اسلامی بہنیں نماز پڑھتی ہیں وہ بھی فرض سے پہلے سنت قبلیہ پڑھنے کی نیت کر لیں. اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کے بدنوں کو جہنم کی آگ پر حرام قرار دے دے. جواب درست دے دیا ہے. اب باری کراچی والوں کی ہے. بتائیے کون سی حدیث ہے گلدستہ حدیث کی آج کے سیگمنٹ کی آخری حدیث؟ تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی کیل گھونپ دی جائے یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں. یہاں بہت سارے لوگوں کے لیے درس ہے. بدقسمتی سے بے پردگی عام ہو چکی ہے. مرد اور عورت مل رہے ہیں, ہاتھ ملا رہے ہیں, بلکہ بتایا جا رہا ہے آج کل تو گلے تک ملتے ہیں. اللہ اکبر. ذرا سوچئے اس حدیث میں کیا سمجھایا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد كان خيرا له من ان يمس امرأة لا تحل له. یہ المعجم الکبیر جلد نمبر 20 اور حدیث نمبر 486. حدیث نمبر 486 ہے. ناظرین اس حدیث کی شرح ذرا سنیے گا. حدیث پاک میں لوہے کی کیل یا سوئی وغیرہ کو اس لیے خاص کیا گیا ہے کہ یہ دوسری تکلیف پہنچانے والی چیزوں کے مقابلے میں زیادہ تکلیف پہنچانے والی ہے. غیر محرم یعنی اجنبی عورت کو فقط چھونے کا یہ عذاب ہے تو پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا جو اس سے بھی بڑھ کر گناہ کرے جیسے کہ کسی عورت سے بدکاری کرنا وغیرہ. اللہ ہم سب کو ان حرام کاموں سے محفوظ رکھے. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. ناظرین آئیے ہم اب نعت خوانی کی طرف چلیں گے. پہلے سکور بورڈ ہمیں بتا دیا جائے اور دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں. نعت خواہ اسلامی بھائی بھی آ جائیں اور ہمیں انشاءاللہ نیک اعمال کا جائزہ بھی ہوگا. جی جی 24 نمبر ہے کراچی والوں کے, 26 نمبر ہے بھلوال والوں کے. اب انشاءاللہ پہلے نیک اعمال کا جائزہ ہوگا اور پھر انشاءاللہ عز و جل ہم انشاءاللہ نعت خوانی کی طرف چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنے اپنے نیک اعمال کے رسالے نکال لیجئے. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ نیک اعمال کا جائزہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھی نیتیں کی, 5 نمازیں با جماعت ادا کی, ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی, رات میں سورہ ملک پڑھیا سن لی, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی, کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سن لیے, شجرے کے اورات پڑھے, 313 بار درود شریف پڑھے, آنکھوں کو گناہوں سے بچایا, کانوں کو گناہوں سے بچایا, فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھی, 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی, اذان و اقامت کا جواب دیا, غصے کا علاج کیا, اپنا جائزہ کیا, اپنے نگران کی اطاعت کی, آپ اور جی کہہ کر بات کی, مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھایا, عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے, 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے, فجر کے لیے جگایا,
दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्ज हुआ, मस्जिद दर्ज दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फ़े रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत क़ब्लिया फ़र्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अवाबीन या इशराक व चाश पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत क़ब्लिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से एक दीनी काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ, गीबत और चुगली से बचे, कुछ ना कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा कर दिया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी ताईद दिल न करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दा पोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हलके में शिरकत की, कुछ ना कुछ जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्ज दिया या सुना, वालिदैन और पीरो मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ेकार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्खरी, तंज, दिल आज़ारी और कहका लगाने से बचे, इमामा शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह करीम हम सब को नेक आमाल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमने नेक अमाल का जायज़ा भी ले लिया। नाज़रीन, जैसे बात हो रही थी कि दुनिया भर में लोग अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल और फिर ज़ैनी आज़माइश को देखते हैं। इस वक्त मुझे कोरिया से मैसेज आया है कि रात तकरीबन 2 बज रहे हैं और माइनस टेम्परेचर है, मगर हम सब घर वाले मिलकर मदनी चैनल पर ज़ैनी आज़माइश देख रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग रातों को जाग कर भी मदनी चैनल देखते हैं। अल्लाह उनकी मोहब्बतों को भी सलामत रखे और हम सबको इसकी बरकत नसीब फरमाए। आइए नाज़रीन, अब नात रसूल सुनते हैं इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक रोज़ होगा जाना इंशाअल्लाह सरकार की गली में, एक रोज़ होगा जाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। को पास कुछ नहीं गए, लेकिन ये देख लेगा को पास कुछ नहीं गए, लेकिन ये देख लेगा एक दिन मुझे ज़माना, एक दिन मुझे ज़माना सरकार की गली में। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझे ये नियाज़ी उनकी करो नवाज़ी, समझे ये नियाज़ी उनकी करो नवाज़ी। जिस दिन हुए रवाना, जिस दिन हुए रवाना सरकार की गली में। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे बुला लो
ہجر کا ستارہ ہے مجھے بلا لو شہر مدینہ مجھے بلا لو شہر مدینہ یہ ہجر غم سارا ہے میں در پہ آؤں یہی تو ارمان میں در پہ آؤں یہی تو ارمان دل میں اور مجھے بلا لو شگے مدینہ یہ ہجر کا ستارہ ہے میں در پہ آؤں یہی تو ارمان میں در پہ آؤں یہی تو ارمان دل میں طوفان چلا ہے مجھے بلا لو شہر مدینہ ایک مدت ہوئی جدائی کو دے دو رخصت شاہ مدینے کی میں نو مجبوریاں دوریاں مارے آسد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں مجھے بلا لو شگے مدینہ یہ ہجر کا ستارہ ہے میں در پہ آؤں یہی تو ارمان میں در پہ آؤں یہی تو ارمان دل میں طوفان چلا فرقت طیبہ قلب مزمگل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے دوغوں پر اگر پڑتے دوغوں بھی تو ہل جاتا میں در پہ آؤں یہی تو ارمان دل میں طوفان چلا ہے مجھے بلا لو شہر مدینہ یا مصطفیٰ اب اذن حاضری کا کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا دل رو رہا ہے جن کا آنسو چھلک رہے ہیں ان عاشقوں کا صدقہ بلوائے مدینہ روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی ہیں اے والی مدینہ
جلدی بلائیے نا ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا مہمان دو گھڑی کا مجھے بلا لو شگے مدینہ یہ ہجر کا ستا رہا ہے میں در پہ آؤں یہ تو ارمان میں در پہ آؤں یہ تو ارمان میں دل میں طوفان مچا مجھے بلا لو شگے مدینہ سگے نہ دشوار یہ جدائی میری ہو در شغار سائی ہے سگے نہ دشوار یہ جدائی میری ہو در شغار سائی نہیں بھروسہ زندگی کا نہیں بھروسہ زندگی کا یہ دل میرا ڈوبا جا زندگی کا یہ دل میرا ڈوبا جا رہا ہے مجھے بلا لو شگے مدینہ اور صبا جو پھیرا ہوئے جانا تو غم زدہ کا سلام کہنا صبا جو پھیرا ہوئے جانا تو غم زدہ کا سلام کہنا یہ عرض کرنا غریب عطا یہ عرض کرنا غریب بدکا یہ عرض کرنا غریب عطا کب مدینے کو آ رہا ہے زرنا غریب عطا صبا جو پھیرا ہوئے جانا تو غم زدہ کا سلام کہنا یہ عرض کرنا غریب عطا یہ عرض کرنا غریب عطا پھر کب مدینے کو آ رہا ہے یہ کرنا غریب عطا کب مدینے کو آ رہا ہے مجھے بلا لو شگے مدینہ یہ
सबा जो फेरा हुए जाना, सबा जो फेरा हो कुए जाना, तो गम ज़दा का सलाम कह। ये अर्ज करना गुलाम अत्तार कब मदीने को आ रहा। आका से अर्ज करना, जो मदीने जा रहे हैं उनसे भी अर्ज करते हैं कि ये कहना आका बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ, बुलावे के मुंतजिर हैं लेकिन न सुबह आया न शाम आया। मदीने पाक काफिले मुसलसल जा रहे, मगर हम में से कई ऐसे लोग हैं जो तड़प रहे हैं। पुकारिए उनको, इल्तिजा करते रहिए, इंशाअल्लाह बनेगा जाने का फिर बहाना, इंशाअल्लाह बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा कर कोई दीवाना, चलो नियाजी तुम्हें मदीने, मदीने वाले बुला रहे। इंशाअल्लाह आका जरूर बुलाएंगे। हम दुरूद पाक पढ़ते रहें, उनकी बारगाह में अर्ज करते रहें इंशाअल्लाह। हमारे साथ अरबी बोलने वाले भी बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक नात ख़्वाह मौजूद हैं इंशाअल्लाह। मेरे आका की ज़बान में उन्हीं की शान में आइए कुछ अशार सुनते हैं इंशाअल्लाह। وأجمل منك لم تر قط عين الله الله وأكمل منك لم تلد النساء الله الله وأجمل منك لم تر قط عين الله الله وأجمل منك لم تلد النساء الله الله خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وريق المصطفى يشفي العليل الله الله وعين علي فخذها دليلا الله الله وريق المصطفى يشفي العليل الله الله وعين قتادة فخذها دليلا الله الله تفل في البئر أضحى سلسبيلا تفل في البئر أضحى سلسبيلا تفل في البئر أضحى سلسبيلا وصار لصحبه خمرا مداما قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل سبحان الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله عطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله كف المصطفى
كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مس الأيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ ماشاء اللہ قمر کہتے ہیں چاند کو جمیل کہتے ہیں خوبصورت کو میرے آقا کی شان بیان ہو رہی تھی اور کس پیارے انداز میں اور شروع میں نے جو شعر پڑھا ایکچولی وہ شعر حضرت حسان بن ثابت نے نبی پاک کی شان میں لکھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں نعت خوانی کیوں کرتے ہو ارے یہ تو صحابہ کے زمانے سے جاری ہے اور حضرت حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے اللہ نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک پیدا فرمایا بلکہ آپ لکھتے ہیں اللہ نے ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے تو سبحان اللہ نعت خوانی کا سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے پڑے خاک ہو الحمدللہ باتیں مدینے کی ہو رہی ہیں نبی پاک کا ذکر خیر ہو رہا ہے ذہنی آزمائش بھی ایک وسیلہ بنتا ہے عاشقان رسول کے مدینے جانے کا سیزن 14 میں کچھ اسلامی بھائیوں کے مدینے کے ٹکٹ کا اعلان ہوا تھا ایک عاشق رسول ایک اسلامی بھائی مدینہ پاک میں موجود ہے اور انہوں نے وہاں سے ہمارے لیے کوئی پیغام بھیجا ہے آئیے سنتے ہیں ذہنی آزمائش سیزن 14 سیزن 14 میں مجھے حصہ لینے کی سعادت حاصل ہوئی الحمدللہ حصہ لیا اور کوارٹر فائنل تک پہنچے تھے ویسے تو بظاہر طور پر ہم ہار گئے لیکن ایک اسلامی بھائی انہوں نے یہ میسج کیا تھا کہ مجھے مدینہ شریف کا ٹکٹ پیش کر دیا الحمدللہ آج میں نے عمرہ بھی کر لیا ہے اور اللہ پاک کی رحمت سے اسلام کے دربار میں بھی حاضر ہو گیا ہوں الحمدللہ مدینہ شریف کی حاضری بھی کی سعادت بھی مجھے عطا ہو گئی میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اسلامی بھائی کا کہ جنہوں نے یہ اتنا بڑا احسان کیا انہوں نے مدینہ شریف کا ٹکٹ کی پیشکش کی اللہ پاک کو جزائے خیر بھی عطا فرمائے اللہ پاک اس کے حلال میں عطا فرمائے جو بھی ان کی جائز بڑھاتے ہیں اللہ پاک ان پر رحمت کی نظر فرمائے ماشاءاللہ مدنی چینل کے سلسلوں کے ذریعے بھی لوگ مدینے پہنچتے اور مدنی چینل کے سلسلے ذہنی آزمائش میں مختلف عاشقان رسول ان طلباء کے لیے اعلان کر دیتے اور دیکھیں پہنچنے والے پہنچ جاتے ہیں اللہ ہمیں بھی اس در کی جلدی جلدی بادب حاضری نصیب فرمائے آئیے ناظرین کچھ کالز بھی ہیں اور بچوں کے ذہنی آزمائش کے حوالے سے بھی کوئی ویڈیو کلپ ہے وہ بھی دیکھتے ہیں کے لیے آج کا سوال یہ ہے کہ تکبر کسے کہتے ہیں حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے آپ کا جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ عثمان آپ سے سوال یہ ہے کہ جمائی کے بارے میں حدیث بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان اس سے ہنستا ہے سبحان اللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ چلے جناب گھر گھر ذہنی آزمائش جاری ہے چلتے ہیں اگلے پروگرام کو بینڈ کرتے ہیں ماشاءاللہ دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے جا کے تشریف رکھیں اور ماشاءاللہ ہمارے عربی شیخ تشریف لائے ہیں ان کے لیے تحفہ بھی ہماری مجلس کی طرف سے جزاک اللہ چلے جناب اسکور بورڈ دکھائے ہمیں انشاءاللہ علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے
जनाब 24 नंबर हैं कराची वालों के, 26 नंबर हैं भलवाल वालों के। अब आखिरी दो सेगमेंट फैसला कर देंगे कौन सी टीम ने आगे जाना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, कुरान में मज़कूर हैवानात। जनाब कुछ नंबर स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, उन नंबर्स पर आप जब स्टॉप कहेंगे हम स्टॉप कर देंगे और उसके पीछे जो जानवर या मखलूक होगी उसके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। मगर इस सिलसिले की अच्छी बात यह है कि जिन भी मखलूकात, जिन भी हैवानात को आपको दिखाया जाएगा ये वही होंगे जिनका जिक्र कुरान में मौजूद है। बताइए जनाब। जी स्टॉप। स्टॉप कर दिया जनाब। 2 नंबर के पीछे कौन सा जानवर है जनाब? घोड़ा आ गया है। सवाल, घोड़ा जंग के दौरान कौन सी तस्बीह पढ़ता है? अल्लाहु अकबर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि जब घोड़ा मैदान जंग में होता है तो वो ये तस्बीह करता है, सुब्बूहुन कुद्दूसुर रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। आपका जवाब हम दुरुस्त मान रहे हैं। कराची वालों की बारी है जनाब, नंबर पसंद करेंगे, नंबर दिखाए जाएं। स्टॉप। जनाब स्टॉप 3 नंबर पर हुआ है। 3 नंबर के पीछे कौन सा जानवर है जनाब? ये तो बकरी। जी सवाल कीजिए। बकरी का जिक्र कुरान पाक की किस सूरत में है? नाज़रीन शायद बहुत सारों के लिए नई बात होगी कि बकरी का जिक्र कुरान में भी है और कहाँ मौजूद है। सूरह ताहा आयत नंबर 18 में। सूरह ताहा आयत नंबर 18। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है फिर भलवाल वालों की। बताइए जनाब। स्टॉप। स्टॉप 5 नंबर पे जाकर हुआ है। चूंटी आ गई है जनाब, अंग्रेजी में जिसे आंट कहते हैं। जी चूंटी का तस्किरा सूरह नमल की किस आयत में है? सूरह नमल की आयत नंबर बताएं। सूरह नमल की आयत नंबर 18 में। जनाब नमल चूंटी को कहते हैं। कमाल देखें, चूंटी के नाम से गोया पूरी सूरत है और आयत नंबर 18 में उसका जिक्र है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब बारी अब कराची वालों की है। मुकाबला बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। कराची वालों बताइए कौन सा नंबर पसंद करेंगे? स्टॉप। 6 नंबर। मकड़ी आ गई है जनाब। मकड़ी का कल भी जिक्र हुआ था। अब सवाल बताइए, मकड़ी के लिए कौन सा सवाल है हमारे पास? कुरान पाक में मकड़ी के नाम की एक सूरत है, उसका नाम बताएं। सूरह अनकबूत। सूरह अनकबूत। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। कुरान में मज़कूर हैवानात का जिक्र और उसकी मालूमात। चले जनाब हाजरीन से एक सवाल और कर लेते हैं। आज ताजरान भी आए हैं, जरा ताजरान से कुछ सवाल कर लेते हैं। ये बताइए, जब जानवरों की ही बात हो रही है, हैवानात की बात हो रही है, किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक के हुक्म से मछली ने निगल लिया था? उस नबी का नाम बताएं। मैं चाहूंगा अगर जो ताजरान इस्लाम भाई आए उनमें से कोई जवाब दे दें तो कोई तोहफा वो भी ले जाएं। किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक के हुक्म से मछली ने निगल लिया था? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद उसामा तारी लांडी बाबा मार्केट से।
जी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। इनको गुफ्तगू के आदाब ये किताब तोहफे में दी जा रही है। मदरी चैनल के नाजरीन, इस पे 18% डिस्काउंट भी है। 25 नवंबर तक आप चाहें तो घर बैठ कर भी ये किताब हासिल कर सकते माशाल्लाह। हैं। जो शफीक भाई के हाथ में किताब है, मकतबतुल मदीना ने इस किताब का खूबसूरत हमारे लिए प्रोमो भी भेजा है। आइए वो हम देखते हैं। कम्युनिकेशन जैसे मौजू पर मकतबतुल मदीना की बेहतरीन किताब गुफ्तगू के आदाब ज़ैनी आजमाइश सीजन 15 के मौके पर 11 नवंबर से 25 नवंबर तक आप गुफ्तगू के आदाब किताब पर 18% डिस्काउंट से फायदा उठा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि आप ज़हनी आजमाइश के फाइनल में होने वाली कुरानदाजी का हिस्सा भी बन सकते हैं और आप हासिल कर सकेंगे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के मुबारक हाथ से लिखी हुई नसीहत और दस्तखत वाली किताब भी। तो फिर देर क्यों, अभी मकतबतुल मदीना विजिट कीजिए और किताब गुफ्तगू के आदाब हदियतन तलब कीजिए। घर बैठे मंगवाने के लिए अभी राब्ता करें। माशाल्लाह जनाब, बड़ी खूबसूरत किताब है, जरूर हासिल कीजिए। नाज़रीन आइए एक बार फिर देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। फिर जगमगाया है ज़हनी आज़माइश देखो फिर से। 28 नंबर कराची के, 30 नंबर भलवाल के। आखिरी सेगमेंट है जो ये फैसला करेगा किस टीम ने आगे जाना है। सेगमेंट का नाम है सफर है मगर अकेले। जनाब दोनों टीमों से गुजारिश है अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। एक इस्लामी भाई भलवाल से कराची और कराची वाले भलवाल, आज कोई टिकट नहीं ली जाएगी आपसे, फ्री में सफर कर लीजिए और आसपास दोनों टीमों के पास चले जाइए। जनाब सिर्फ एक इस्लामी भाई की जब बारी होगी तो उसी ने जवाब देना है, किसी से मशवरा नहीं करना। 5 सवाल होंगे, सही कहना है या गलत कहना है, मगर जल्दी कहना है। देर करेंगे तो हो सकता है आपका सवाल स्किप कर दिया जाए। कोई किसी को इशारा भी नहीं करेगा, सिर्फ अपनी तरफ अपने सवाल की तरफ तवज्जो रखनी है। बिलाल भाई भलवाल से हैं, आप तैयार हैं? ख्वाजा गरीब नवाज सिलसिला नक्शबंदिया के बानी हैं। गलत। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हिजरत की रात दारे अरकम में कयाम फरमाया। सही। नमाज की शराइत 6 हैं। सही। नून साकिन और तनवीन के 2 कायदे हैं। सही। जहन्नम के दारोगा का नाम मालिक अलैहिस्सलाम है। सही। जनाब गलतियां हुई हैं, अब देखना है। 2 गलतियां कर गए हैं भलवाल के इस्लामी भाई। कराची के अब हसनैन की बारी है। हसनैन भाई आप तैयार हैं? जन्नतुल मआला मदीने में है। गलत। सूरह रहमान को कुरान की दुल्हन कहा जाता है। सही। कुरान पाक में लफ्ज मोहम्मद 4 बार आया है। गलत। इस्मत सुरमा लगाना सुन्नत है। सही। कुरान पाक का दिल सूरह यासीन को कहा जाता है। सही। जनाब एक गलती की है, 4 नंबर हासिल कर लिए हैं। इसका मतलब ये हुआ अब भी 1 नंबर से कराची पीछे है। अब बारी है भलवाल वालों की, नोमान की बारी है। जी नोमान भाई, हजरत अली को इराक के शहर कूफा में शहीद किया गया। सही। कुफरिया कलमात के बारे में सवाल जवाब अमीर अहले सुन्नत की तसनीफ है। सही। जंगे बदर की फतह के दिन नबी पाक की साहबजादी हजरत फातिमा का विसाल हुआ। गलत। सूरह गाफिर सूरह मोमिन का दूसरा नाम है। सही। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम 100 साल सोने के बाद बेदार हुए थे। गलत। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। शानदार कमबैक किया है भलवाल वालों ने। अब बारी आसिफ भाई की है, कराची टीम से ताल्लुक है। हम्बली इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुक़ल्लिद हैं। सही। शबे बरात शाबान की 15 तारीख को होती है। सही। अमीर अहले सुन्नत 26 सफर को पैदा हुए। गलत। रजबुल मुरज्जब 7वां महीना है। सही। सूरह मुल्क 30वें पारे में है। गलत। जनाब एक गलती गालिबन की है, 4 नंबर हासिल किए हैं। इसका मतलब ये हुआ अब भी 2 नंबर का फर्क है। अब कराची के इस्लामी भाई की बारी है, बल्कि भलवाल के इस्लामी भाई की बारी है। ये आखिरी इस्लामी भाई फैसला कर देंगे कौन सी टीम आगे जाएगी। भलवाल के इस्लामी भाई मौजूद हैं वहां पर, जिनका नाम आतिफ है। आतिफ आप तैयार हैं? ईद उल फितर 10 शव्वाल को होती है। गलत। वैसे करनी रदी अल्लाह तआला साहबी नहीं है। सही। मदनी चैनल का आगाज 12 रबीउल अव्वल को हुआ है। सही। मुफ्ती दावत इस्लामी मरहूम हाजी फारूक अत्तारी का मजार हैदराबाद में है। गलत। इमाम हुसैन का मजार शाम में है। सही। अल्लाह 2 गलतियां कर दी हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कराची के इस्लामी भाई अगर 5 के 5 सही जवाब दे दें तो मुकाबला बराबर हो सकता है। एक भी गलती की गुंजाइश नहीं है, यह फैसला हो जाएगा। और अब बारी है कराची के इस्लामी भाई की। 5 सवाल हैं जनाब। सिरातुल जिनान तफसीर की पहली जिल्द 4 पारों पर मुश्तमिल नहीं है। सही। नमाज के अहकाम किताब में अमीर अहले सुन्नत के 12 रिसाले मौजूद हैं। सही। ज़हनी आजमाइश सीजन 1 रबीउल अव्वल के मौके पर हुआ था। गलत। ज़हनी आजमाइश का सीजन 2 जमजम नगर हैदराबाद ने नहीं जीता था। सही।
बैतुल मुकद्दस मुसलमानों का किबला अव्वल है। सही। अल्लाह, 2 गलतियां हुई हैं। इसका मतलब ये हुआ आज का मुकाबला भलवाल वाले जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। आज मुझे एक और बात सीखने को मिली कि दोनों टीमें बिल्कुल बराबर बराबर ही होती हैं। कभी भी शुरू में गलती नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सवालात हों या अशार हों। बाज़ औक़ात एक गलती 1-2 नंबर से पीछे रह जाना अगले स्टेज के जाने के लिए बड़ा भारी पड़ जाता है, और ऐसा ही आज कराची के साथ हुआ। बाकी तो ऑलमोस्ट बराबर रहे, लेकिन वो जो 2 नंबर थे वो उनको बड़े मुश्किल में डाल गए। बहरहाल इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। कराची वालों को एक मौका ज़रूर मिलेगा, तैयारी करके आइएगा। क्या मालूम अगले स्टेज पर आप चले जाएं। दोनों टीमों से गुजारिश है आगे तशरीफ लाएं। आइए देखते हैं मदनी चैनल के व्यूअर्स की खास तौर पर ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन पर राय क्या थी, कराची या भलवाल। ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है जी, सिर्फ 24% वोट थे भलवाल के, 75% राय कराची की थी, मगर मामला उलट गया जनाब, और भलवाल वाले आगे बढ़ गए हैं। अब इस्लामी भाई तो सारे ही बहुत अच्छे हैं, किसको दिया जाए जनाब। भलवाल के आतिफ भाई किधर है, आगे आ जाए माशाल्लाह। ये बड़ी अच्छी इनकी कारकर्दगी रही, इनको ये हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं। एक सवाल जो नाजरीन से हम करेंगे, जिसका जवाब कल सिलसिला शुरू होने से पहले देना है। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा का नाम क्या है। नाजरीन, आपने कल सिलसिला शुरू होने से पहले SMS के जरिए जवाब देना है। अदब और शौक के साथ सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए माशाल्लाह। सलातो सलाम पढ़ें। मुस्तफा खैरुल वरा हो, सरवरे हर दो सरा हो। मुस्तफा खैरुल वरा हो, सरवरे हर दो सरा हो। अपने अच्छों का तसल्लुक तुम बदों को भी निभालो। या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई, वजब शुक्रु अलैना मदआ लिल्लाहि दाई। या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। सल्लु अलल हबीब। मजलिस के इख्तिताम की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलातु वस्सलामु अलैका नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है।